Hey hi everyone, welcome to this Bitcoin, XA USD and Euro USD analysis. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा. हिंदी वाला पार्ट सेकंड हाफ में रहेगा. Guys, this video will be in both Hindi and English language. Let's first start with English. If you see guys, we have been talking about these levels since long time in Bitcoin. You can verify from our video yesterday, and then what is happening here, you see it has again traveled back to this value area high and again coming back below. Okay. Now, if you notice the delta values over here, once it was going, the values are very muted. Okay, as compared to the previous values. Okay, so these kind of big delta absorption has happened over these levels. Okay, you see this much delta and then came down, and here you see this much. These are some big delta, absorbed and then came down. So here it is absorbing the market buyers, that is the limit sellers are active at these levels. And if you see here again, we are seeing some red delta, getting absorbed and the market going, upside. So you can see that here we have limit sellers active and here we have limit buyers active and market is actually moving in the range. So until and unless this level is broken properly with a good delta, so for upside, if it breaks with a proper big delta or downside, we are not going to trade. Okay. So right now, these are the important levels for Bitcoin. Then coming back to XA USD, guys, you see, we have, created these levels since long time. This was a strong support level and this was a strong value area. And yesterday we had adjusted the levels again. If you remember the yesterday videos, you can refer to that video. And we have adjusted these levels. And now, guys, what has happened? You see, it has again, it did not travel completely, but then it's gone back, and then it has again reversed from these levels. And now it is again traveling between these levels. Okay. So right now, let's adjust these level again. Okay. So if I just simply draw this fixed range market profile, now this level is actually like this. Okay. So let me just change these levels. Okay. So we can just shift it to here. Okay. And this one, we are going to delete this line. Okay. So right now, this is one value area. You can see a proper D-shaped profile is here. Okay, so market is currently inside this value area. Then we have another value area. Okay, so this is how the level of gold will act. Okay, so let me just lock it and save these levels. So this is about gold, guys. Okay, and then here, if you see the Euro USD, so for Euro USD also we have adjusted these levels yesterday, and you see how beautifully these levels are actually getting respected. Okay, so this was the level where it was consolidating. It has gone up, broken up, and again it is actually consolidating just to the value area low. Okay, so right now the levels for Euro USD will be this one value area and this one value area. Okay, so if it comes down with a proper red delta, which is visible, which is quite visible that the sellers are active right now. Okay, so once it breaks down, we can take trade up to here, the safe trade. Okay, so this was about the Euro USD. Right now, I'm not going to change any levels for Euro USD, guys. आइए हम लोग हिंदी में बात करते हैं. तो अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे गाइस, तो हम लोग कंटिन्यूअसली ये लेवल मॉनिटर कर रहे हैं बिटकॉइन में. और अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट बायर्स जो है एब्जॉर्ब होकर के नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे मार्केट सेलर एब्जॉर्ब होकर प्राइस ऊपर जा रहा है. तो इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बायर और मार्केट सेलर दोनों एब्जॉर्ब हो रहे हैं ऊपर से नीचे, इसलिए मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है. ठीक है, और ये जब तक लेवल्स ठीक से ब्रेक नहीं हो जाते नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तब तक हम इस रेंज में ट्रेड लेते रहेंगे. अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास एक ये वैल्यू एरिया है जहाँ पे मार्केट आ सकता है. ओके, ये तो हो गया बिटकॉइन का. अभी चलते हैं हम लोग एक्सए यूएसडी में. तो गाइज, अगर आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू एरिया बना हुआ था, वो हमने वैल्यू एरिया कुछ इसके हिसाब से बनाया हुआ था. एक हमारा यहाँ पे लेवल था और एक हमारा यहाँ पे लेवल था. ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर गया और वापस मार्केट नीचे आता है.
ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये हमने फिर से लेवल्स कल ड्रॉ किए थे गाइस। अगर हम इस रेंज अगर हम इस स्विंग में अगर हम फिक्स रेंज मार्केट प्रोफाइल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक थिक एरिया मिलेगा और एक थिक एरिया यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए हमने अभी क्या किया है, हमने अपने लेवल्स को एडजस्ट किया है। एक वैल्यू एरिया ये है और एक दूसरा वैल्यू एरिया ये है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि वैल्यू एरिया में ट्रेड कैसे करते हैं। अभी सिंपली हमने क्या किया है, वैल्यू एरियाज को हमने मार्क किया है, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू एरिया में मार्केट है और ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक हमारा डाउन साइड का ट्रेड बनता है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी आपको थोड़ा पॉजिटिव डेल्टा दिख रहा है, बट अगर आप ये वाली कैंडल्स देखोगे ना, ये वाली कैंडल्स, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा नेगेटिव डेल्टा मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके ही नीचे का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको बायर्स दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं, सॉरी, यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी के लिए भी हमने कल ये लेवल्स को फिर से एडजस्ट किया था गाइस। देखो ये वाला जो वैल्यू एरिया है, इस पे मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, हाई लेवल, हाई वैल्यू एरिया और लो वैल्यू एरिया, और उसके बाद वापस जाके ये जो हमारा वैल्यू एरिया है उसके वैल्यू एरिया लो पे मार्केट रुका हुआ है, ठीक है। तो हमको बेसिकली फाइंड करना है वैल्यू एरिया। और वैल्यू एरिया कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, आपको सिंपल फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल लगाना है। फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल लगा के आप देखो, एक ये वैल्यू एरिया नजर आ रहा है और दूसरा वैल्यू एरिया ये नजर आ रहा है। इस लाइन को अगर आप देखोगे तो हम थोड़ा सा अभी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये एक दूसरा वैल्यू एरिया है जो कि हमको एक थिक मिल रहा है, और इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे अभी, ओके। तो कुछ इस तरह से आप वैल्यू एरियाज निकाल सकते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। तो गाइज अब ये वैल्यू एरिया निकालने के बाद हमको ट्रेड कैसे करना है, तो इसके लिए हमको ऑक्शन मार्केट थ्योरी के जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, और किस तरह से हम वो ऑक्शन मार्केट थ्योरी के रूल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेवल्स पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइज, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको प्रोसेस दिखाया, प्रीवियस डे के मार्केट प्रोफाइल से हम वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो निकालते हैं। और यहाँ पे जब मार्केट प्रीवियस डे वैल्यू एरिया के अंदर खुलता है तो हम रिवर्सल ट्रेड्स लेते रहते हैं वैल्यू एरिया हाई से वैल्यू एरिया लो के लिए। उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू एरिया को ब्रेक करता है तो हम पुल बैक का वेट करते हैं वैल्यू एरिया तक, और वहां से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, और सेम डायरेक्शन के लिए। अब ये तो हो गई प्रीवियस डे वैल्यू की बात, लेकिन करंट डे की भी तो कोई वैल्यू होती है। तो करंट डे की वैल्यू आपको पता चलती है वी वैप से। वी वैप अगर आपका फ्लैट है, इसका मतलब करंट डे की वैल्यू कोई नई नहीं बन रही है, बल्कि बल्कि वो उसी दिन की वैल्यू के अंदर ही वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि वी वेब चूंकि फ्लैट है, तो हमको यहाँ पे वी वेब के जो एक्सट्रीम बैंड्स है वहां से रिवर्सल लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बैंड से रिवर्सल लेना है। और अगर वी वेब आपका स्लोप में है तो आपको रिवर्सल पे यानी पुल बैक पे आपको फिर से उसी डायरेक्शन के ट्रेड में घुसना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी वेब स्लोप में है। अब ट्रेड एक्चुअली कैसे लेना है, हमको सबसे पहले तो प्रीवियस डे के मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से वैल्यू एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया। उसके बाद आपको करंट वैल्यू एरिया, जो करंट डेवलपिंग वैल्यू है उसको पता करने के लिए आपको वी वेब का स्लोप पता करना है। और इन दोनों का यूज करके आपको एक सिनर्जी बनानी है। जब ये सिनर्जी बन जाती है तो फिर आप डेल्टा इंडिकेटर का यूज करो स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए। जिधर डेल्टा इंडिकेटर इंडिकेट करता है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेनी है, और ट्रेड आप हमेशा पुल बैक पे लो, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आपको ये लेवल हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइज।